ایک نواب کی پر اسرار تلسماتی دنیا کی آپ بیتی، محبت اور نفرت کے تصادم، نیکی اور بدی کی کشمکش کی داستان۔ السلام علیکم دوستو، پیش خدمت ہے ایک نواب کی پر اسرار تلسماتی دنیا کی آپ بیتی، ایپیسوڈ نمبر 26۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، وہاں خاموشی تھی۔ باہر مجھے ایک یا دو گھوڑے دوڑنے کی آوازیں سنائی دیں۔ میں شہناز کے کمرے میں گیا، وہ وہاں نہیں تھی۔ وہاں اب کوئی بھی نہیں تھا۔ تاجہ اور اس کا ساتھی صحن میں پڑے تھے اور ان کا خون اکٹھا ہو کر صحن کی مٹی میں جذب ہو رہا تھا۔ میں نے دونوں کو باری باری دیکھا، دونوں مر چکے تھے، لیکن میں ماننا نہیں چاہتا تھا کہ تاجہ بھی مر سکتا ہے۔ وہ میرے لیے عظیم ہستی تھا۔ میں اس کے پاس بیٹھ گیا اور اسے پکارنے لگا۔ میرے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ میں نے اوپر دیکھا، دو آدمی کھڑے تھے۔ ایک کو میں جانتا تھا، وہ اس گاؤں کا نمبردار تھا۔ دوسرا بھی اسی گاؤں کا آدمی ہوگا۔ اٹھو لڑکے، نمبردار نے مجھے کہا، یہاں سے نکل جاؤ۔ کیوں نکل جاؤں؟ میں نے غصیلی آواز میں کہا، میرا استاد مر رہا ہے، اسے اٹھا کر چارپائی پر ڈالو۔ یہ مر چکا ہے، نمبردار نے کہا، مجھے اپنا فرض ادا کرنے دو۔ جس طرح دوسرے لوگ یہاں سے نکل گئے ہیں، اسی طرح تم بھی نکل جاؤ گے تو میں تھانے میں اطلاع دوں گا۔ تاجے کے ساتھ میرا وعدہ تھا کہ میں اسے یا اس کے کسی آدمی کو گرفتار نہیں ہونے دوں گا۔ میرا دماغ میرے قابو میں نہیں رہا تھا۔ یہ صدمہ میری برداشت سے باہر تھا۔ تاجہ اگر مر بھی گیا تھا تو میں اس کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ شہناز اگر چلی گئی تھی تو مجھے اس کا کوئی غم نہیں تھا۔ نمبردار مجھے زبردستی اٹھا رہا تھا، لیکن میں نہ اٹھا۔ پاگل مت بنو لڑکے، نمبردار نے کہا، میں نمبردار ہوں۔ یہ میری ڈیوٹی ہے کہ تھانے میں اطلاع دوں کہ میرے گاؤں میں دو لاشیں پڑی ہیں۔ مجھے وہاں جھوٹ بولنا پڑے گا کہ یہ لوگ معلوم نہیں کس طرح یہاں آ گئے تھے اور کیوں آپس میں لڑ جھگڑ کر مارے گئے ہیں۔ جاؤ جاؤ، میں نے چلا کر کہا، جہنم میں جاؤ، جو جی میں آئے کرو۔ اگر تاجہ مر گیا ہے تو میں اسے دفن کر کے یہاں سے نکلوں گا۔ نمبردار کی جان پر بنی ہوئی تھی، وہ سرکاری آدمی تھا، اس کا تھانے جانا ضروری تھا۔ میں اپنی ضد پر اڑا ہوا تھا۔ اس نے اور انتظار نہ کیا اور چلا گیا۔ مجھے یاد نہیں کتنا وقت گزر گیا ہوگا، اتنا یاد ہے کہ رات گزر گئی تھی۔ میں ابھی تک تاجے کی لاش پر ہاتھ پھیرتا اور روتا تھا۔ اس کا ساتھی قریبی مڑا پڑا تھا۔ تاجے کا خنجر اس کے سینے میں دستے تک اترا ہوا تھا۔ سورج نکل آیا، لیکن میں نے اس کی تپش محسوس نہ کی۔ آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ میں وہاں کتنی دیر بیٹھا ہوں گا۔ اچانک دو آدمیوں نے پیچھے سے ہو کر مجھے اٹھایا۔ میں نے دیکھا، وہ پولیس کے باوردی آدمی تھے۔ وہ مجھے صحن میں کھرلی کے قریب لے گئے۔ اسے ہتھ کڑی لگا لو۔ یہ شاید تھانے دار کی آواز تھی۔ اس نے کہا، جلدی کرو، ڈی ایس پی صاحب آ رہے ہیں۔ مجھے ہتھ کڑی لگ گئی، میری زبان بند تھی۔ ایسے لگتا تھا جیسے بڑا ڈراؤنا خواب دیکھ رہا ہوں۔ میرے ارد گرد لوگ باتیں کر رہے تھے۔ گاؤں میں ہلکا ہلکا شور تھا، لیکن میں جیسے ان آوازوں سے لا تعلق ہو گیا تھا۔ وقت کا کوئی احساس نہ تھا۔ صاحب آ رہا ہے، یہ آواز باہر سے آئی۔ گورا صاحب آ رہا ہے۔ گورا صاحب اندر آ گیا۔ وہ درمیانے قد کا انگریز تھا۔ یہی وہ ڈی ایس پی صاحب تھے جس کے متعلق تھانے دار نے کہا تھا کہ ڈی ایس پی صاحب آ رہے ہیں۔ میں نے کسی انگریز کے ساتھ کبھی بات نہیں کی تھی۔ میں انگریزی بول نہیں سکتا تھا اور میرا خیال تھا کہ وہ اردو نہیں بول سکے گا، لیکن وہ بولا تو پتہ چلا کہ وہ تو مجھ جیسی اردو بول سکتا ہے۔ تم ان کے ساتھی ہو؟ ڈی ایس پی نے مجھ سے پوچھا۔ میں نے سر ہلا کے بتایا کہ میں ان کا ساتھی ہوں۔ تاجے کی لاش کون سی ہے؟ اس نے پوچھا۔ میں نے اشارے سے بتایا۔ وہیں دو پلنگ بما بستر آ گئے اور ان کے ساتھ 3-4 کرسیاں اور چھوٹی سی ایک میز بھی آ گئی۔ ڈی ایس پی ایک کرسی پر بیٹھ گیا اور اس نے اشارہ کیا کہ مجھے اس کے سامنے پیش کیا جائے۔ میں اس کے سامنے کھڑا کر دیا گیا۔ صرف ایک کانسٹیبل میری ہتھ کڑی پکڑ کر کھڑا رہا اور باقی سب باہر نکل گئے۔ تم سچ بولو گے؟ ڈی ایس پی نے پوچھا۔ ہاں صاحب، میں نے جواب دیا، جھوٹ بولنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ڈی ایس پی نے مجھے کرسی پر بٹھا دیا اور میرے لیے پانی منگوایا۔ پورا بیان دو، ڈی ایس پی نے کہا۔ صاحب بہادر، میں نے کہا، آپ تنگ تو نہیں آ جائیں گے؟ میرا بیان بہت لمبا ہے۔ تم 10 دن تک بولتے رہو، ڈی ایس پی نے کہا، ہم تسلی سے سنیں گے۔
मैंने बोलना शुरू किया। मैंने अपना बयान उस दिन से शुरू किया जिस दिन शहनाज मेरी सौतेली माँ बनकर आई थी। अपने अगवा का और फरार का पूरा वाकया सुनाया। तूफान में जिस तरह मुझे फजी मिली थी वो भी सुनाया। नवाब के महल में जो कुछ भी हुआ और मैं जिस तरह वहाँ से निकला वो सब बयान किया। फिर मेरा बाप जिस तरह मरा और मैं जिस तरह शहनाज की माँ के घर गया वो भी कह सुनाया। दिल्ली जाने और शहनाज को साथ लाने और सेठ के रास्ते में आ जाने का किस्सा भी सुना दिया और जिस तरह ताजा मारा गया वो बयान किया। मैंने उसे ये भी बताया कि शहनाज ने मुझे ताजी की मोहब्बत किन अल्फाज में सुनाई थी। मैं देख रहा था कि डीएसपी बड़ी तवज्जो से मेरा बयान सुन रहा था। इस दौरान उसने मेरे लिए दूध मंगवाया और मुझे पिलाया। तुम कभी ताजे के साथ किसी वारदात में शामिल हुए हो? डीएसपी ने पूछा। नहीं साहब। हम कैसे यकीन करेंगे? डीएसपी ने पूछा। साहब बहादुर, मैंने कहा, अगर मैं बेईमान होता तो फौरन थाने पहुंचता और ताजे के सर की कीमत 10,000 रुपया वसूल कर लेता। मैं कहता कि ताजे को मैंने कत्ल किया है और उसके साथी को भी। उसके बाद पुलिस की अपनी कुछ कार्रवाइयाँ थी। कई लोगों के बयान लिए गए। मुझे आज भी नंबरदार का अफसोस होता है कि मैं उसे ना बचा सका। बयान देते वक्त मुझ पर ऐसी जज्बाती कैफियत तारी हो गई थी कि मुझे ख्याल ही ना रहा कि मैं बजाय ये कहने के कि हम सब रात को यहाँ आए थे, मैंने ये कह दिया कि मैं बहुत दिनों से यहाँ हूँ। बहुत बाद में ख्याल आया कि मैं नंबरदार को मरवा दिया है। सूरज गुरूब होने से कुछ पहले मुझे हथकड़ियों में डीएसपी अपने साथ ले गया। वहाँ से थाना 8 मील दूर था। थाने जाकर डीएसपी ने मुझसे एक और बात पूछी। तब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मैंने उसे मालवा डाकू के ठिकाने से फरार की कहानी सुनाई थी। मालवा डाकू कौन से गांव में है? डीएसपी ने जवाब दिया। मालूम नहीं साहब, मैंने हादर दिमागी से जवाब दिया। मुझे बेहोशी की हालत में वहां ले गए थे और मैं रात के वक्त वहां से भागा था जब तूफान बहुत ही तंद और तेज था। खुदा का शुक्र है डीएसपी मान गया और इस तरह इशू गिरफ्तारी से बच गई। 15-20 दिन मुझे पुलिस की हिरासत में रखा गया। कभी थाने की हवालात में रखते, कभी पुलिस हेडक्वार्टर ले जाते और 2-3 रातें सीआईडी की हवालात में गुजर जाती थीं। मुझे याद नहीं कि कितने पुलिस अफसरों ने मेरे बयान लिए। मालूम नहीं पुलिस की क्या क्या कार्रवाइयाँ की। आखिर में ये हुआ कि मुझे डीएसपी के सामने ले जाया गया। उसने मेरी हथकड़ी उतरवा दी और मुझे अपने सामने कुर्सी पर बिठा लिया। उस दफ्तर का शहाना था। तुम्हारे खिलाफ कोई केस नहीं, डीएसपी ने कहा। अब कहाँ जाओगे? साहब बहादुर, मैंने कहा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मैंने तो ये सोच लिया था कि बाकी उम्र कैद खाने में गुजरेगी। मेरा अपना मकान है लेकिन वहां जाने को जी नहीं चाहता। अगर हम तुम्हें नौकरी दे देंगे तो करोगे? कैसी नौकरी साहब? मैंने पूछा। पुलिस की नौकरी, डीएसपी ने कहा। लेकिन ये पुलिस नहीं जो थाने में होती है। हम तुम्हें पुलिस के एक और शोबे में रखेंगे जो खास शोबा है। तुम बहुत अक्लमंद जवान हो। हम देख रहे हैं कि तुम इस नौकरी के लिए फिट हो और बहुत तरक्की करोगे। हम तुम्हें खास ट्रेनिंग देंगे। तनख्वाह आम पुलिस से दुगनी होगी। फालतू अलाउंस मिलेगा। देखो जवान, अपनी जिंदगी तबाह ना करो। ठीक है साहब, मैंने कहा। उसने मुझे एक और अंग्रेज अफसर के हवाले कर दिया जिसने मुझे कुछ कागजात तैयार करके बाकायदा तौर पर मुलाजिम रख लिया। आज से तुम पुलिस के स्पेशल ब्रांच के मुलाजिम हो। उस अंग्रेज अफसर ने कहा, तुम्हें खास ट्रेनिंग के लिए कल सुबह भेज दिया जाएगा। एक बात बताओ, क्या तुम जानते हो कि ताजे के बाकी साथी जिस औरत पर उनकी लड़ाई हुई थी उस औरत को लेकर कहाँ गए होंगे? मुझे कुछ मालूम नहीं साहब। ठीक है जवान, उसने कहा, हम उन्हें पकड़ लेंगे। वो मुस्कुराया और बोला, उन्हें तुम पकड़ोगे? मैं बाहर निकला तो एक पुलिस कांस्टेबल मुझे पुलिस लाइन ले गया। उसने मुबारकबाद देकर कहा कि पुलिस का ये शोबा किसी खुशकिस्मत को ही मिलता है। पुलिस लाइन में जिस किसी को भी पता चलता था कि मुझे पुलिस के इस खास शोबे में भर्ती किया गया है तो मेरे पास आकर मुझे कोई अजीब चीज़ समझकर देखता। कोई उसे स्पेशल ब्रांच कहता, कोई सीआईडी, कोई सीआईए और ज़्यादातर उसे खुफिया पुलिस कहते हैं, जो एक आम असतला है। जो भी मिलता बात इन सवालों से शुरू करता, कहाँ के रहने वाले हो, मुसलमान हो,
नाम क्या है, ज़ात, बाप का नाम, जिंदा है, कितना पढ़े हो, किसकी सिफारिश से भर्ती हुए हो। अगर तुम इस ब्रांच में कामयाब हो गए, एक मुसलमान हेड कांस्टेबल ने कहा, अगर अंग्रेज अफसरों को तुमने कुछ करके दिखाया तो सरकार तुम्हें नहरी ज़मीन के मुरब्बे देगी, तुम्हारी 7 पुश्तें ऐश करेंगी। मैं तो अभी सोचने भी ना पाया था कि मेरी किस्मत अच्छी है या बुरी। अलबत्ता उसे अपनी खुशकिस्मती समझता था कि मैं डाकुओं का साथी होने के जुर्म की सज़ा से बच गया था और मेरी गुलू खुलासी बड़ी जल्दी हो गई थी। मैं अभी इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता था कि मैंने पुलिस में भर्ती होने का फैसला क्यों कर किया है, अच्छा किया है या बुरा किया है। फिर एक और शख्स मुझसे मिलने बल्कि मुझे देखने आया, जो चंद कदम दूर से मुझे देख कर रुक गया और उसके चेहरे पर हैरत का तासुर आ गया। मैं भी उसे देखकर चौंका और उठ खड़ा हुआ। हम दोनों आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे की तरफ बढ़े। उसके बाजू फैले थे और फिर मैं उसके बाजुओं में जकड़ा गया। सिकंदर, उसने मुझे दोनों कंधों से पकड़कर पीछे हटाकर कहा था, यार यकीन नहीं आता, ये तुम हो? तुम यहाँ तक किस तरह पहुँचे? मैं पिछले महीने छुट्टी काट कर आया हूँ। पता चला कि तुम घर से भाग गए हो। यार बहुत अफसोस है, तुम्हारे वालिद साहब फौत हो गए। और वो क्या कहूँ सिकंदर, वो जो तुम्हारी सौतेली माँ बना दी गई थी, शहनाज नाम था, वो सुना है पहले ही किसी के साथ भाग गई। उस शख्स का नाम अयूब था, उम्र में मुझसे 7-8 साल बड़ा, मेरे शहर का रहने वाला था, मोहल्ला एक ही था, लेकिन हमारे घर ज़रा दूर दूर थे। जिंदा दिल आदमी था। मैं उस वक्त स्कूल में पढ़ता था जब वो पुलिस में डायरेक्ट असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर भर्ती हो गया था और अब वो सब इंस्पेक्टर था। मुझे याद है कि मेरे बाप ने शहनाज के साथ शादी कर ली जब अयूब छुट्टी आया था, और मुझे ये भी याद है कि मैंने उसे दोबारा शहनाज के घर से निकलते देखा था। मुझे ये भी याद है कि एक रोज़ मैं अपने घर को आते हुए शहनाज के घर वाली गली से गुजरा तो अयूब शहनाज के घर में दाखिल हो रहा था। मैं अपने घर आया तो मेरे पीछे पीछे शीदो दाई आ गई और उसने शहनाज से कुछ कहा। सिकंदर, शहनाज ने मुझे कहा, मेरी अम्मी को ज़रा तकलीफ सी हो गई है, शीदो बुलाने आई है, मैं जा रही हूँ, जल्दी आ जाऊंगी। और वो शीदो के साथ निकल गई। अब अपने घर से इतनी दूर पुलिस लाइन में अयूब से मुलाकात हुई तो मुझे वो दिन याद आए। ये समझने में ज़रा भी देर ना लगी कि अयूब शहनाज की खातर उसके घर जाया करता था और उनके ताल्लुकात में जो शरीफाना हो ही नहीं सकते थे, शहनाज की माँ भी शामिल थी। अयूब सब इंस्पेक्टर था और पुलिस लाइन में अलग कमरे में रहता था। वो मुझे अपने कमरे में ले गया और पूछा कि मैं घर से भागकर कहाँ चला गया था और मैंने ये 3-4 साल कहाँ गुजारे और मुझे पुलिस की उस ब्रांच में किस तरह भर्ती किया गया। उसने बड़ी हैरत से एक ही बार इतने सारे सवाल कर डाले। मैंने बड़े तहम्मुल और इत्मीनान से एक झूठी कहानी घर कर उसे सुना दी। मैं आपको ये बता दूं कि मेरे दिल में अयूब के खिलाफ नाराज़गी या नापसंदीदगी नहीं थी, बल्कि उसे वहाँ देखकर मुझे खुशी हुई कि अपने शहर का एक आदमी मिल गया। आप छुट्टी गए थे, मैंने अयूब से कहा। शहनाज से आप मिले थे, अब तक वापस आ चुकी होगी। नहीं, अयूब ने जवाब दिया, वो वापस आने के लिए नहीं गई थी। एक अफवाह ये भी मशहूर हुई थी कि उसकी माँ ने किसी सेठ या नवाब से अच्छी खासी रकम लेकर शहनाज को उसके हवाले कर दिया था। सिकंदर, मुझे अब तक अफसोस है कि तुम्हारे वालिद साहब जैसे मुअज़्ज़ज़ आदमी ने उसके साथ शादी कर ली थी। जैसी माँ थी वैसी बेटी निकली। मैंने कहा, दोनों बदकार हैं। तुम्हें एक बात बताऊं सिकंदर, अयूब ने कहा, शहनाज बदकार नहीं थी। मेरा मतलब है कि वो ऐसी बदकार नहीं थी जो उसे रुपए पैसे की झलक दिखाता या जो आदमी उसे पसंद आता वो उसके साथ ताल्लुकात कायम कर लेती। वो तो आदमियों पर अपना जादू करके उन्हें नचा देती थी। किसी खास आदमी की दोस्ती कबूल करती थी। बहुत चालाक और मकार औरत है। वो छोटा मोटा जुर्म करने वाली औरत नहीं। वो चाहे कहीं भी हुई अपनी उस्तादी दिखा रही होगी। तुम उसे नहीं जानते थे सिकंदर, उसने तुम्हारा घर उजाड़ दिया है। मैं तो कहा करता हूँ कि वो अगर जुराइम पेशा लोगों में चली जाए तो पुलिस को चक्कर में डाल दे। उसने शहनाज के मतलब चंद और बातें बताईं। वो मुझे बता रहा था
کہ शहनाज के मुतल्लक सिर्फ ये कहना ठीक नहीं कि उसका चाल चलन खराब था, वो बड़ी माहर जुराम पेशा थी। अल्लाह को यही मंजूर था। सिकंदर, अयूब ने कहा, जो हो गया सो हो गया, तुम अब अपनी ज़िंदगी और अपने मुस्तकबल बनाने की कोशिश करो। तुम्हें ऐसी नौकरी मिल गई है जिसमें मेहनत और ख़तरे तो बहुत हैं, लेकिन तरक्की और इनाम कराम के मौके भी बहुत। यूँ समझ लो कि तुम जासूस और सुरागरसां हो गए हो। ट्रेनिंग पूरी तवज्जो से करना। ये जासूसी और सुरागरसानी कैसी होगी? मैंने पूछा। हर किस्म की जासूसी, अयूब ने कहा। कभी तुम भेस बदल कर डाकुओं की दुनिया में फिर रहे होगे और कभी सोसाइटी का बड़ा मुअज़्ज़ज़ आदमी बनकर तुम बड़े लोगों की महफिलों और ज़ियाफ़तों में जाओगे। एक रोज़ तुम नवाब और अगले रोज़ भिखारी बने हुए होगे। ट्रेनिंग में तुम सब कुछ समझ जाओगे। मैं तुम्हें यह कहना चाहता हूँ कि तुम दुनिया में अकेले रह गए हो। अगर मुझे अपना बड़ा भाई समझ लो तो मुझे बहुत खुशी होगी। अल्लाह ना करे कभी कोई मुश्किल आ पड़ी तो मुझे इतला देना, मैं पहुँचूँगा। मुझे सर्विस के मुतल्लिक़ कुछ बताएं, मैंने कहा। अपने काम में दिलचस्पी लेना, अयूब ने कहा। दयानतदार रहना, बुरी आदतों और अय्याशी में ना पड़ना। अयूब ने मुझे नसीहतें भी की और मुझे यकीन दिलाया कि वो मेरा बड़ा भाई बनकर रहेगा। ट्रेनिंग बड़ी सख्त थी। पहले 2 महीने उन्होंने हमें जानवर बनाए रखा। हम 8 नौजवान थे, 3 मुसलमान, 3 ईसाई और 2 हिंदू। सुबह काज़ब के वक्त जगा लेते, दौड़ाते हुए जंगलों में ले जाते, कभी कपड़ों समेत गलीज पानी में से और कभी कीचड़ में से गुजारते, पहाड़ियों पर और दरख्तों पर चढ़ाते, बुलंदी से छलांगे लगवाते, सीधी दीवारों पर चढ़ाते और इस तरह उन्होंने हमें बंदर बना दिया था। ट्रेनिंग के मुतअद्दिद मरहले थे। हर मरहला बयान करने की क्या ज़रूरत है। ट्रेनिंग पूरे 1 साल की थी। उसमें हमें अदाकारी सिखाई गई। हमारे जहनों से मज़हब और जज्बात निकाल दिए गए। हमारी ब्रेन वाशिंग की गई। हमारे दिलों से मस्जिद, मंदिर, गिरजे और दीगर इबादत गाहों का एहतराम निकाल दिया गया। हमें जिस्मानी और जहनी लिहाज से चुस्त और हर दम तैयार बना दिया गया। हमें जहन नशीन कराया गया कि हमारी ज़िद में अपना सगा बाप और भाई भी आ जाए तो हम उसे अपना दुश्मन समझें। हमारे दिलों में सिर्फ एक चीज़ का एहतराम रहने दिया गया, ये था ताजे बरतानिया, यानी अंग्रेज़ों की बादशाही। हमें उसी बादशाही के लिए जीना और उसी के लिए मरना था। मैं अपने मुतल्लिक़ बताना ज़रूरी समझता हूँ कि मैं नौजवानी की इस उम्र में जिस्मानी लिहाज से ताकतवर हो सकता था। दिमागी लिहाज से मैं इतना तेज़ नहीं हो सकता था जितना मैं हो गया था। ये अल्लाह की देन थी। मेरे अंदर शायद एक हिस्स फालतू थी जिसे छठी हिस्स कहते हैं। मुझ में एक वसफ़ ये भी कुदरती तौर पर पैदा हो गया था कि जिस किस्म के हालात भी मुझे घेर लेते या जिस सूरत हाल में भी मुझे फेंक दिया जाता, मैं उन्हीं हालात के साथ समझौता कर लेता। मुझे कोई ज़्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ती थी। क्या ये कमज़ोरी थी कि मैं हर रंग में रंगा जाता था, अपने आप को हालात के हवाले कर देता था? क्या मैं हथियार डाल देता था? मैं इन सवालों का जवाब नहीं दे सकता। मैं इतना ही बता सकता हूँ कि मुझ में कोई ऐसी खूबी या कोई ख़ास बात ज़रूर थी जो मुझे तो नज़र नहीं आती थी। मेरे अफसर देख लेते थे और मुझे ज़्यादा तवज्जो देते। मैं अपने मुतल्लिक़ यही कुछ जानता था कि मैं बड़ा खूबसूरत जवान था। मेरा चेहरा, मेरा रंग, मेरा जिस्म बहुत खूबसूरत था, लेकिन अपनी तरफ कभी तवज्जो नहीं दी थी। दूसरे मुझे अपनी तवज्जो का मरकज़ बना लेते। मैं ट्रेनिंग के दौरान अफसरों की तवज्जो का मरकज़ बन गया था। आखिर ट्रेनिंग भी ख़त्म हो गई। मैं अपने आप में ऐसी तब्दीली महसूस कर रहा था जैसे मैंने दूसरा जन्म लिया हो। मेरा जिस्म पहले से ज़्यादा फुर्तीला और दिमाग और ज़्यादा तेज़ हो गया था और कुछ करने या कुछ गुजरने को जी चाहता था। एक अंग्रेज़ एसपी ने हमें लेक्चर दिया। हिंदुस्तान तुम्हारा अपना मुल्क है और शहनशाह बरतानिया इस मुल्क का मुहाफ़िज़ है। हम तुम्हें तनख्वाह देते हैं, रोटी और कपड़ा देते हैं। ताजे बरतानिया के वफादारों को हम इनाम देते हैं। हमने तुम्हें जो ट्रेनिंग दी है ये तुम्हारे अपने मुल्क के काम आएगी। तुम अपने दुश्मनों से अपने मुल्क को बचाओगे। तुम्हारे मुल्क के दुश्मन तुम्हारे मुल्क में मौजूद हैं। तुम सुनते रहते हो कि दहशत गर्दों के गिरोह
मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वो रेलगाड़ियों को तबाह करने के लिए रेलवे लाइन में बम रख देते हैं, सरकारी इमारतों को तबाह करने की कोशिशें करते रहते हैं, आला अंग्रेज अफसरों को कत्ल करने की टो में लगे रहते हैं। तुम खुद सोचो कि इस मुल्क का इंतज़ाम चलाने वाले अंग्रेज अफसरों में एक भी मारा जाए तो तुम्हारे मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचेगा। उन दहशतगर्दों और तखरीबकारों में मुसलमान भी, हिंदू और सिख भी हैं। उनमें जो सिख हैं वो रूस से तखरीबकारी और तबाहकारी की ट्रेनिंग लेकर आए हैं। याद रखो, तुम्हारा कोई मजहब नहीं, हिंदुस्तान की सलामती और शहनशाह बरतानिया के साथ वफादारी तुम्हारा अकीदा है। ये लोग दरअसल डाकू और लुटेरे हैं। लोगों को बताते हैं कि वो हिंदुस्तान को बरतानिया की गुलामी से आज़ाद कराना चाहते हैं, लेकिन वो लोगों को लूटते हैं। वो उनकी बेटियों को अगवा करके ले जाते हैं। उन दहशतगर्दों के अलावा डाकुओं और राहज़नों के गिरोह हैं जिन्होंने मुसाफिरों का चलना फिरना हराम कर रखा है। वो लोगों के घरों में डाके डालते हैं। तुम खुद जानते हो कि वो क्या करते हैं। दहशतगर्द हों या डाकू, ये पकड़े नहीं जाते। उनके ठिकानों और अड्डों का सुराग नहीं मिलता। किसी डाकू की मौजूदगी की इतला पर पुलिस वहां छापा मारती है तो डाकू वहां नहीं होता। गांव के लोग उसे पहले ही खबरदार करके भगा देते हैं। उन दहशतगर्दों, तखरीबकारों और डाकुओं को तुम पकड़ोगे। इस काम के लिए तुम्हें खुद डाकू और दहशतगर्द बनना पड़ेगा। तुम्हें भेष बदलने पड़ेंगे और तुम्हें अपनी जान खतरे में डालनी पड़ेगी। हम तुमसे वादा करते हैं कि तुम जब सर्विस पूरी करके निकलोगे तो तुम एक 100 एकड़ और उससे भी ज्यादा जरखेज जमीन के मालिक होगे। शहनशाह बरतानिया तुम्हें जमीन इनाम में देंगे। इस मुल्क में कहीं जाली नोट बन रहे हैं और कहीं बम बन रहे हैं, असला भी बन रहा है। उन मुजरमों का भी सुराग नहीं मिलता। उन्हें भी पकड़ना तुम्हारे फराइज में शामिल है। उस अंग्रेज एसपी का लेक्चर बहुत लंबा था और वो उर्दू हमारी तरह रवानी से बोलता था। 1 साल में हमें ज़हनी तौर पर शहनशाह बरतानिया का गुलाम बना लिया गया था। आज जब उन लम्हों का काफिला दूर, बहुत दूर उफक पर मुतहरक धब्बों की तरह नजर आ रहा है और मेरे और उसके दरमियान आधी ज़्यादा से ज़्यादा अरसा हायल हो गया है, मुझे याद आ रहा है अंग्रेज अपने कानून का एहतराम अपने मजहब जैसा करते थे। वो कानून तोड़ने वालों का वजूद बर्दाश्त नहीं करते थे। मैंने ये भी देखा था कि वो हिंदुस्तानी रियाया को नफरत की निगाह से देखते थे, लेकिन उसी रियाया में से किसी मुजरम की जिद पड़ती थी तो अंग्रेज़ों की पुलिस बड़ी तेज़ी से हरकत में आती और मुजरम को सज़ा देकर ही दम लेती थी। अंग्रेज़ों में शायद यही खूबी थी कि उन्होंने सिर्फ हिंदुस्तान को ही नहीं, कई और मुल्कों को गुलाम बना रखा था। हम आज़ाद हुए और सबसे पहला काम यह किया कि कानून को ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल करना सीखा और कानून शिकनी पर मुल्क की सियासत की बुनियाद रखी। क्या हम सब कानून की तौहीन की सज़ा नहीं भुगत रहे? मैं सियासतदान नहीं, मैं फ़लसफ़ी भी नहीं, मैं आलम और फाज़ल भी नहीं। मेरे पास तो तजर्बा है। मैंने हालात, वाक़यात और इंसानों को पढ़ा है और यही मेरा इल्म है। मैं यही पेश कर रहा हूँ। ये तस्वीरें हैं जो आपको दिखा रहा हूँ। लेक्चर के बाद एसपी मुझे और मेरे एक मुसलमान साथी सुल्तान अहमद को अपने दफ्तर में ले गया और कुर्सियों पर बिठाया। आप ज़रूर सोचेंगे मैंने कुर्सियों का जिक्र क्यों किया है। अगर मैं कहता कि अपने दफ्तर में बिठाया तो यही काफ़ी था। मैं ज़रा इसकी वजाहत कर दूं। अंग्रेज़ों के दौरे हुकूमत में किसी हिंदुस्तानी का किसी अंग्रेज़ अफसर के सामने कुर्सी पर बैठना बहुत बड़ा एजाज़ समझा जाता था। अंग्रेज़ अफसर अपनी बराबरी में कुर्सी पर सिर्फ उस हिंदुस्तानी को बिठाते थे जिसे वो इतने बड़े एजाज़ के काबिल समझते थे। मुझे और सुल्तान अहमद को असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का ओहदा दिया गया था, लेकिन हमने पुलिस की वर्दी नहीं पहनी थी। ये ओहदा तनख्वाह की खातिर दिया गया था। तनख्वाह के अलावा हमारे जो अलाउंस मुकर्रर किए गए वो तनख्वाह जितने ही थे। इस तरह मेरी तनख्वाह ASI की तनख्वाह से दुगनी थी। सिकंदर, एसपी ने कहा, तुमने अभी अभी ट्रेनिंग ख़त्म की है और मैं तुम्हें एक ऐसा काम दे रहा हूँ जिसके लिए तजर्बा चाहिए।
तुम ना तजर्बाकार हो, फिर भी मैं ये तुम्हें काम दे रहा हूँ। तजर्बा इसी तरह हासिल होगा। मुझे यकीन है कि तुम ये काम कर लोगे। आप काम बताएं साहब बहादुर, मैंने कहा। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि कर लूँगा। तुम अकेले नहीं होगे, एसपी ने कहा। सुल्तान अहमद तुम्हारे साथ होगा। 2 डाकुओं के गिरोह तोड़ने हैं। एक गिरोह मालवा का है और दूसरा ताजा का। ताजा तो अपने एक साथी के साथ मारा जा चुका है साहब बहादुर, मैंने कहा। 1 साल हो गया है मैं उनके साथ था। मुझे मालूम है, एसपी ने कहा। तुम ताजे के ठिकाने पर पकड़े गए थे। डीएसपी क्लार्क ने तुम्हें सजा से बचाया और तुम्हारी सिफारिश की थी तुम्हें स्पेशल ब्रांच में भर्ती कर लिया जाए। ताजा मारा गया था लेकिन उसका गिरोह नहीं टूटा था।